welcome. This is second lecture for the subject hydrology and water resources. We have already completed one lecture in which we studied, we went through the introduction of hydrology, that how actually the study of water started. We went through how philosopher started studying the hydrology, then your scientists came, and then after that the age of computer came, and the sequence is like that: philosophers, and after that scientists, and after that computer. Okay, so in this sequence, the hydrology is the structure of hydrology, or the history of hydrology is like this. Okay, so in today's lecture we will study two topics. First topic is world water balance. Second topic is hydrologic cycle. Okay, so as you already know that hydrology is all about hydrological cycle. Okay, so second point is where we will start exploring the hydrology. Okay, so first we will come to world water quantity or world water balance. What is it? It is basically how much water is distributed across the earth. Okay, so this information or this table is generated by UNESCO. This report is given by the UNESCO, and you can find some very interesting detail about the earth, that about the water in the earth. Okay, so let's try to see what is there, what is important information here. So you see here what this table tells you, that ocean have 361.3 million square kilometer area across the earth. This much area of whole earth is covered by only ocean. Okay, and how much water does they contain? How much volume of water they contain? And they contain this much amount of water. What is the value? This is roughly about 13 into 10 to the power 8. Okay, unit kilometer cube. Okay, so this is a huge amount of water. Okay, what is the percentage? So here is the percentage, 96.5%. so whatever water we have in the earth, 96.5% of water is in the ocean. Okay, and you see nothing is mentioned here. Why it is not mentioned here? Because the column is about percentage of fresh water, but ocean do not contain fresh water, so the quantity of fresh water in ocean is 0. Okay, similarly, what is the amount of water that is available in the as groundwater? Okay, so you can see from here, this is roughly around 10 into 10 to the power 6. Okay, then kilometer cube water. Okay, so this much amount of water is as groundwater. Okay, what is the percentage? So 0.76%. So whatever water you have in the earth,
0.76% of water is present as groundwater. Okay, and if you have to calculate it in terms of fresh water. What is the percentage of fresh water? So you see 30.1%. So whatever water is available as fresh water, its 30% is nothing but your groundwater. Okay, or this information we was talking about fresh water. Okay, now groundwater can also be saline in nature. Okay, so same set of information is given here. Again, nothing is mentioned here. Why it is not mentioned? Because it is saline water. So groundwater में कितना saline water है? Okay, भैया इतना saline water है. वो कितना पीने लायक है? तो सलाइन वाटर तो पीने लायक होता ही नहीं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं दी गई है. ओके, सो नथिंग वाज मेंशन. इस तरह से जितने भी वेरियस फॉर्म्स में वाटर प्रेजेंट है, ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी यूनेस्को ने कैलकुलेट करके रखी हुई है. अब इस इंफॉर्मेशन का आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे. ओके, बाय नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू कैलकुलेट फ्यू थिंग्स. ओके, now coming to our core part, what is it? Hydrologic cycle. So what is hydrologic cycle? आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि आपने 11th 12th या 10th में भी ये पढ़ा होगा हाइड्रोलॉजिक साइकिल कि आपका जो अर्थ है उसमें क्या है, दो पार्ट है. एक क्या है, ओशन है आपका. ओके, बाकी पोर्शन क्या आपका लैंड है, माउंटेन है. तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है कि वाटर कैसे सर्कुलेट कर रहा है. अगर यहीं पे मैं आपसे सवाल पूछूं, आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हैज नो बिगिनिंग नो एंड. ओके, इट इज कंप्लीट अ सर्कल. इट इज अ बेसिकली काइंड ऑफ लूप. कुछ भी आपको पता नहीं है कि बेसिकली स्टार्ट कहां से हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है. ओके, तो आप जैसा आप जानते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं कि भैया समुद्र है तो और आपका लैंड है, रिवर है, सनलाइट जाता है तो क्या होता है, वो वाटर हीट होता है. उसके बाद क्या होता है, इवापोरेट होता है और वेपर फॉर्म में बन जाता है. ओके, वेपर फॉर्म में बनता है, फिर वो मूव करता है. वेपर मूव करने के बाद जैसे ही वो वेपर कूल डाउन होता है तो क्या होता है, वापस से रेनफॉल होती है. रेनफॉल ग्राउंड पे आता है, वो फ्लो होता है और वापस से अल्टीमेटली आपके ओशन में जाके मिल जाता है. ठीक, हम यहाँ पे टेबल पे देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. क्या हो रहा है, सबसे पहले इवापोरेशन हो रहा है. ठीक है, इवापोरेशन कहाँ पे हो रहा है, ओशन में हो रहा है, लैंड में भी होगा. फिर हम यहाँ से इस तरीके से डायग्राम के हिसाब से चल रहे हैं. तो पहले क्या होगा, ओशन में से इवापोरेट हुआ, ओशन से इवापोरेट हुआ. इवापोरेशन के बाद क्या हुआ, वाटर राइज करेगा. ओके, इवापोरेशन की वजह से वाटर राइज क्यों करेगा? ठीक है, आप याद करेंगे ये वाला इक्वेशन PV = NRT, या आप रफली मान लीजिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. क्या होता है, आप जानते हैं कि अर्थ में आप जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाते हैं क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है. जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा. ओके,
तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर क्या होगा, जैसे ही हीट होगा तो वेपर में चेंज होगा और ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे क्या है, हाई प्रेशर है। सरफेस पे क्या है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस तरीके, और इधर क्या है, ऊपर आप जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम है। जैसे जैसे ऊपर आप जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर ऊपर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर भी कम होगा। ओके, तो इधर पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। इससे क्या होगा, आपका जो भी गैस है ये कैसे मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है तो वाटर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर मूव करना पड़ेगा। इस तरीके से वो ऊपर मूव करने लगेगा। ठीक है, जैसे ही ऊपर मूव करेगा फिर क्या होगा, सपोज ये ओशन का पोर्शन है, इधर क्या है आपका, ये लैंड वाला पार्ट है। ठीक, तो जैसे ही क्या होगा, ये वाला पोर्शन में कोई कोल्डर रीजन होगा, जैसा कि कोल्डर रीजन क्रिएट होगा तो कोल्डर रीजन में क्या होगा, फर्दर सेम कंसेप्ट। अगर यहाँ पे मान लो टेम्परेचर है 27 डिग्री, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ऐसा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा, क्या होगा, ये वाला वेपर जो बना हुआ है ये किस साइड मूव करेगा, वापस से कोल्डर रीजन की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा भैया, लो प्रेशर, वापस से टेम्परेचर कम, बस प्रेशर कम, तो ये वाला वेपर क्या होगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, मूव करते हुए जाएगा। जैसे ही सफिशिएंट टेम्परेचर कम होगा या सफिशिएंट लोअर टेम्परेचर होगा, वेपर क्या होगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कंडेंस होगा तो क्या होगा, रेनफॉल होने लगेगी और वाटर क्या हो जाएगा, आपका नीचे जाने लगेगा और आपकी रेनफॉल होने लगेगी। अब यहाँ पे मैं रेनफॉल लैंड में दिखा रहा हूँ, लेकिन रेनफॉल ओशियन में भी होती है, लैंड में भी होती है, कहीं भी हो सकती है। जहां भी टेम्परेचर कम होगा उधर जाके रेनफॉल हो जाएगी। ओके, और क्या प्रोसेस हो रहा है हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, तो इवापोरेशन तो एक हो ही रहा है। इवापोरेशन तो आपका एक हो ही रहा है। प्लांट भी वेपर फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो ट्रांसपीरेशन का आपका प्रोसेस करते हैं। फूड बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो ट्रांसपीरेशन करते हैं। तो इस ट्रांसपीरेशन के वजह से भी क्या होगा, वेपर फॉर्म होगा। प्लांट भी वेपर क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये भी जाके किस में कंट्रीब्यूट करेगा, ये इवापोरेशन और ये ट्रांसपीरेशन दोनों जाके क्या करेंगे, क्लाउड में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ट्रीज भी क्या करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड, ट्रीज क्या कर रहे हैं, इस एरिया में क्या कर रहे हैं, ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या कर रहे हैं, वेपर रिलीज कर रहे हैं। तो वेपर रिलीज करने की वजह से क्या होता है, वो एरिया, जैसे आप घर पे कूलर चलाते हैं तो कूलर चलाने से क्या होता है, आप अपने रूम में एयर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, आपका रूम ठंडा होने लगता है। उसी तरीके का, रफली उसी तरीके का प्रोसेस प्लांट भी करते हैं कि वो अपने एरिया में क्या करते हैं, वाटर छोड़ देते हैं। जैसे ही वाटर छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, कूलर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है, ज्यादा बारिश होती है। इसलिए ऐसा बोलते हैं ना कि जहां भी पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पे बारिश ज्यादा होती है। ओके, सेम चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माउंटेन्स पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ भी आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए ये क्लाउड्स क्या है, इस तरीके से आ रहे हैं,
ठीक, इस तरीके से आ रहे हैं, इस पे माउंटेन से टकरा रहे हैं। जैसे ही टकराएंगे तो क्या होगा, वो मूव करके ऊपर साइड जाएंगे, और ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, क्लाउड्स कंडेंस करेंगे और दोबारा से क्या होगी, रेनफॉल होगी। ओके, सो ये पूरा सर्कल है, और हर इस पूरे सर्कल में भी बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल है। ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सिर्फ एक पार्ट में नहीं है, बहुत सारे पार्ट में है। ओके, सब कुछ मिला के क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनता है। ओके, so this is also very important data। अगर आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं, तो ये भी यूनेस्को ने ही दिया है। इन्होंने बताया कि भैया आपके एक साल में कितना प्रेसिपिटेशन होता है, इसका इन्होंने रेट कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये इन्होंने कैलकुलेट किया था, इन्होंने ये जो भी कैलकुलेशन है ये 1978 में कैलकुलेट कर रखी थी। तो इन्होंने क्या कैलकुलेट करके बताया है कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, रेनफॉल है। हम आगे डील करेंगे इसको, क्यों दूसरा नाम है, दो नाम क्यों है, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल, दो नाम क्यों है। ओके, तो आप ये टेबल क्या बताता है आपको कि भैया टोटल जो बारिश होती है वो कितनी होती है, इतनी बारिश होती है कहां पे, ओशन में। ओके, और लैंड पे कितनी बारिश होती है, ये वाली पे। ठीक है, बारिश का यूनिट क्या है, किलोमीटर क्यूब पर ईयर। ओके, ये यूनिट है कि इतना मतलब हर साल कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर होती है, तो इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर होती है। ओके, आई होप यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन। अगर आप यूज करना चाहें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, we will do this numerical. Okay, so what is the question here? The question is, what is the residence time of global atmospheric moisture? What is the meaning of this question? They are asking that water, पहले समझिए कि रेसिडेंस टाइम क्या होता है। तो रेसिडेंस टाइम क्या होता है, रेसिडेंस टाइम होता है, यहां पे ध्यान देंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच वाटर रिमेन्स इन वन फेज। कहने का मतलब है कि सपोज आप एक लेक को सोचिए, इमेजिन करिए कि ये एक लेक है। अब इसमें क्या हुआ है, इस लेक में कुछ वाटर आया, ठीक है, इस लेक में कुछ वाटर आया और फिर क्या हुआ, वो वाटर इवापोरेट हुआ। तो भैया ये जो वाटर है एज लिक्विड कितने दिन तक एज लिक्विड इस लेक में था, ठीक है, एज लिक्विड कितने टाइम तक था इस लेक में, वही उसका क्या है, रेसिडेंस टाइम, कि वो एक फेज में कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक रह रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है कि जैसे अब ये क्या है, मान लो यहां से वाटर बना क्या, वेपर। ओके, तो वेपर बनने के बाद वो दोबारा से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, रेनफॉल होगी। तो कितने देर तक वो एज वेपर फॉर्म में था, वो भी क्या है, उसका रेसिडेंस टाइम है। रेसिडेंस टाइम है कौन से फेज का, वेपर फेज का। जब लेक में था
तो रेसिडेंस टाइम था किस फेज का? लिक्विड फेज का। ओके, तो रेसिडेंस टाइम क्या हुआ कि वो किसी एक फेज में कितने देर तक रहता है। ओके, फेज क्या है आपका? स्टेट, इट इज द स्टेट ऑफ वाटर इन विच सिस्टम, इन विच इट रिमेन्स इन द सिस्टम। ओके, अब कैसा भी हो सकता है, चाहे वाटर के फॉर्म में रहे, चाहे स्नो के फॉर्म में रहे, चाहे रन ऑफ के फॉर्म में रहे, या रेनफॉल के फॉर्म में रहे। ओके, सो ये सब क्या है उसका, ये उसका क्या है? फेज है। ओके, तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जो वाटर है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के फेज में कितनी देर तक रहता है। व्हाट इज द रेसिडेंस टाइम ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ओके, आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। आपको कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं दिया गया है। डेटा क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि आपको ऑलरेडी, आपके पास यूनेस्को की रिपोर्ट है, आपके पास वर्ल्ड वाटर बैलेंस है। ओके, सो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? आपके पास दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन क्या है? ये इस टेबल में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आपको कि भैया प्रेसिपिटेशन है, इवापोरेशन है, रन ऑफ है, ये सब इंफॉर्मेशन दी गई है, और एक साल में कितना किलोमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, या कुल मिला के कहा जाए कि डिस्चार्ज। ओके, तो आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन में क्या है आपके पास कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है अक्रॉस द अर्थ। हमको किस पे फोकस करना है? हमको फोकस करना है एटमॉस्फेरिक वाटर। तो एटमॉस्फेरिक वाटर का वॉल्यूम कितना है? 12,900 किलोमीटर क्यूब। ओके, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर कितनी वॉल्यूम है आप यहां से देख सकते हैं। व्हाट इज द यूनिट? इतना वॉल्यूम है। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? ये इंफॉर्मेशन है कि प्रेसिपिटेशन की इंफॉर्मेशन है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? बेसिकली रेनफॉल। रेनफॉल को ही आप प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अपन बाद में समझेंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन में हमारे पास क्या है? आप देखेंगे बारिश कहाँ होती है? ओशन में होती है, लैंड में होती है। बट क्वेश्चन क्या है? एटमॉस्फेरिक वाटर के बारे में। ऐसा नहीं कहा गया है कि लैंड में या ओशन में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को काउंट देखना पड़ेगा। तो दोनों इंफॉर्मेशन को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। Okay, what will be the value? What is the unit? Okay, आपको क्या चाहिए? आपको
आपको चाहिए ये वाला टाइम। तो कैसे निकालेंगे रेसिडेंस टाइम? रेसिडेंस टाइम कैसे निकालेंगे? आपको ये वाली वैल्यू कैसे चाहिए? यूनिट याद रखिए, इसका क्या होगा? टाइम का यूनिट होगा, यानी यहाँ पे क्या है, ईयर का यूनिट लाना है, तो यूनिट के हिसाब से चाहिए। क्या करना पड़ेगा आपको? वॉल्यूम को डिवाइड कर देना पड़ेगा किससे? डिस्चार्ज से। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? कितनी वाटर हो रही है, आप कितना बारिश हो रहा है आपका एक साल में। तो वॉल्यूम क्या है आपका? 12,900। ओके, हाउ मच दिस इज? 577,000। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? सो जीरो, सॉरी, कितना आ रहा है? 0.022 ईयर। आप डेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 से, ये आ जाएगा लगभग 8.02 डेज। ओके, तो ये क्या वैल्यू आ गई कि आपका वाटर जो है एज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कितने देर तक रहता है, या रेसिडेंस टाइम ऑफ वाटर एज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कितना है? 8.2 डेज। ओके, सो आपका रेसिडेंस टाइम कितना आ गया? आगे कितना आपका? 8.02 डेज। ओके, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, बट इस कैलकुलेशन का या इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है? ओके, तो इसका फायदा क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आपने जो रेसिडेंस टाइम निकाला है, इसका मतलब ये है कि वाटर जो है एज मॉइस्चर सिर्फ 8 दिन तक रहता है, 9वें दिन वो मॉइस्चर नहीं रहेगा। 9वें दिन क्या हो जाएगा? वो फेज चेंज कर देगा। क्या होगा इससे? सपोज आप वेदर को फोरकास्ट करना चाहते हैं। ओके, अब अगर वेदर को फोरकास्ट करना चाहते हैं तो इसका ये भी मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिन पहले फोरकास्ट कर सकते हैं? 8.02 डेज। ओके, आप ये कभी भी नहीं बता पाएंगे कि रेनफॉल 10 दिन पहले होगी या नहीं होगी। आप सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर ही बता सकते हैं फॉर ग्लोबल रेनफॉल। ओके, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से आप दूसरे फेजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि भैया और दूसरे फेज में वाटर कितने दिन तक रहता है। अगर लेक में वाटर कितने दिन तक रहता है, तो लेक के बारे में अगर आपको कुछ फोरकास्ट करना है तो उसका भी टाइम निकल के आएगा। तो आप बता सकते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन तक या इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक ही आप क्या कर सकते हैं, इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पहले ही आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 8 दिन तक ही आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं या फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर आप 9वें दिन का फोरकास्ट करना चाहते हैं तो वो क्या है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? भैया 8 दिन तक ही रहता है पानी, 9वें दिन का हमें नहीं पता। ओके,
So this is a important point, or I have listed it as note. So you can write it in your notes. So thank you very much.